नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौआयर्याणम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती श्रावणम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमो मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः कृपावनिदाता। परमात्मा प्रकाश आचार्य भगवान योगिंदु देव रचित परमात्मा प्रकाश દ્રવ્યાનુયોગનો ગ્રંથ એનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં આપણે 100મી ગાથા સુધી સ્વાધ્યાય કર્યો છે. હવે આજે આગળ 101મી ગાથાથી સ્વાધ્યાય શરૂ કરીએ છીએ. અહીંયા બોધાત્મા કહે છે कि आगे इसी अर्थ को दृष्टांत से दृढ़ करते हैं. इसी अर्थ को એટલે જે 100મી ગાથામાં જે વાત કરવામાં આવી એને વધુ દ્રઢ કરે છે. ગાથા 101 आत्मा प्रकाशयति आत्मानं परम यथा अंबरे रविराग योगेन अत्रमा भ्रांतिम कुरु एष वस्तु स्वभाव. एना अन्वयार्थ में कहे छे कि यथा अंबरे रवि राग, जैसे आकाश में सूर्य का प्रकाश अपने को और पर को प्रकाशित करता है, उसी तरह आत्मा आत्मानं परम प्रकाशयति, आत्मा अपने को और पदार्थों को प्रकाशता है. सो योगीन, ये योगी, अत्र भ्रांति मा कुरु एष वस्तु स्वभाव, इसमें भ्रम मत कर, ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है. सो कहे जैसे आकाश में सूर्य का प्रकाश अपने को और पर को प्रकाशित करता है, उसी तरह आत्मा अपने को और पदार्थों को प्रकाशित करता है. सो हे योगी, इसमें भ्रांति मत कर, ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है. स्व पर प्रकाशक स्वभाव, आत्माना स्व पर प्रकाशक स्वभावની વાત કરી છે. ભાવાર્થમાં અહીંયા કહે છે કે જેવી રીતે વાદળા વિનાના निर्मल आकाश में सूर्य नो प्रकाश पोताने अने परने प्रकाशे छे, एवी रीते वितराग निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सार में स्थित थईने मोह रूपी मेघ पटल नो नाश थता परमात्मा छद्मस्त अवस्था में वितराग भेद भावना रूप ज्ञान वडे स्व अने परने प्रकाशे छे. पछी अरहंत अवस्था में ये अरहंत अवस्था रूप कार्य समय सार रूपे परिणमीने केवल ज्ञान थी स्व अने परने प्रकाशे छे. एवो आत्म वस्तुनो स्वभाव छे, एमां संदेह नथी. अहीं केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टयनी व्यक्ति रूप एटले व्यक्तता रूप जे कार्य समयसार छे ते ज उपादेय छे एवो अभिप्राय छे. एक साथे घणी वात करी. मूळ वात तो ए छे के पोते स्व पर प्रकाशक छे, ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा छे. एटले उदाहरण ए आप्युं सूर्यनुं के जेम सूर्य प्रकाशे छे तो सूर्य पोते पोताने અને બીજાને બધાને પ્રકાશે છે, સ્વને અને પરને પ્રકાશે છે. એ દ્વારા સૂર્યનો પણ ખ્યાલ આવે છે અને સૂર્યપ્રકાશમાં બીજાઓનો આપણને ખ્યાલ આવે છે.
તેવી રીતે વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિરૂપ કારણ સમયસારમાં સ્થિત થઈને પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈને એટલે કે છે કે તેવી રીતે વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિરૂપ કારણ સમયસારમાં સ્થિત થઈને, કારણ સમયસાર એટલે પોતાનો આત્મા, એમાં સ્થિત થઈને એમાં એકાગ્રતા કરીને મોહરૂપી મેઘ પટલનો નાશ થતા સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા કરે છે એટલે મોહનો નાશ થાય છે. એટલે જેમ સૂર્યને એની આગળથી મેઘ પટલ એટલે કે વાદળ એ ખસી જાય છે તો એ સૂર્ય આપણને દેખાય છે, પ્રકાશિત દેખાય છે. એવી રીતે જીવને પોતાના સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા કરે છે તો એને મોહનો નાશ થાય છે અને મોહ ચાલ્યો જતા હવે જે જ્ઞાન છે તે સમ્યક જ્ઞાન થઈ જાય છે. એટલે એવા સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક દર્શન એટલે સમ્યક શ્રદ્ધાન સહિત એ પોતાના સ્વરૂપમાં જેટલી એકાગ્રતા કરે છે તો એટલું એને સમ્યક ચારિત્ર પણ પ્રગટ થાય છે. એટલે એમ એ મોહરૂપી મેઘપટલનો નાશ થતા પરમાત્મા છદ્મસ્ત અવસ્થામાં વિતરાગ ભેદ ભાવના રૂપ જ્ઞાન વડે છદ્મસ્ત અવસ્થામાં, તીર્થંકર તો પછી થશે અથવા તો કેવળી થશે તો પણ પછી થશે. દરેક જીવ જે સિદ્ધ થાય છે એ કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ કરે છે એટલે કેવળી થાય છે, અરિહંત થાય છે અને પછી સિદ્ધ થાય છે. એમાં કોઈક જીવ તીર્થંકર થાય છે એટલે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ કરે છે, તીર્થંકર થાય છે અને પછી સિદ્ધ થાય છે. કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થયા પછી કોઈ એમાં ફેર હોય છે એમ નથી. પણ એ તો પછીની વાત લીધી છે, પૂર્ણ દશા પ્રગટ કરી એની વાત. પણ એ પહેલા અહીંયા તો કહે છે કે પરમાત્મા છદ્મસ્ત અવસ્થામાં વિતરાગ ભેદ ભાવના રૂપ જ્ઞાન વડે, ભેદ જ્ઞાન વડે, વિતરાગી ભેદ જ્ઞાન એટલે પોતે સ્વ અને પોતાથી બીજું બધું જુદું, એ બધું પર, એવા ભેદ જ્ઞાન વડે છદ્મસ્ત અવસ્થામાં, છદ્મસ્ત અવસ્થા એટલે જ્યાં સુધી એને જ્ઞાનાવરણીય દર્શનાવરણીય કર્મના ઉદય છે અને કર્મના ઉદયના નિમિત્તે એને જ્ઞાન દર્શનના ઉઘાડ છે એ પૂર્ણ થયા નથી, પૂર્ણપણે ઉઘાડ થતો નથી. એટલે જ્ઞાનાવરણીય દર્શનાવરણીય કર્મના ઉદય છે અને એને હજી એવું જ્ઞાન દર્શનનો પૂર્ણ ઉઘાડ નથી, એટલે છદ્મસ્ત અવસ્થા. તો એવી અવસ્થામાં પોતે તો ભગવાન આત્મા છે ને, પરમાત્મા સ્વરૂપ જ છે. તો છદ્મસ્ત અવસ્થામાં એ વિતરાગ ભેદ ભાવના રૂપ જ્ઞાન વડે સ્વ અને પરને પ્રકાશે છે. પછી અરહંત અવસ્થા રૂપ કાર્ય સમયસાર રૂપે પરિણમીને, અરહંત અવસ્થા રૂપ કાર્ય સમયસાર રૂપે પરિણમીને કેવળ જ્ઞાનથી સ્વ અને પરને પ્રકાશે છે. પહેલા છદ્મસ્ત અવસ્થાની અંદર પણ એ પોતે જ્ઞાન સ્વભાવી ભગવાન આત્મા છે અને એને ભેદ જ્ઞાન છે એટલે સ્વથી જુદું બીજું બધું છે. એટલે એ સ્વ અને જુદું પોતાને બીજા બધાથી અન્યથી જુદો જાણે છે, અનુભવે છે. એ સ્વને જ્યારે પ્રકાશે છે તો બીજું બધું એનાથી જુદું ભિન્ન છે એમ ભેદ જ્ઞાન સમ્યક થઈ જાય છે. પહેલા જે સ્વવિકલ્પ દશામાં ભેદ જ્ઞાન કર્યું હતું કે અનેક પદાર્થોથી જુદો, વર્તમાન પર્યાયથી પણ જુદો, પરના લક્ષ્ય થતા ભાવથી પણ હું જુદો છું, એ ભેદ જ્ઞાન જે સ્વવિકલ્પ દશામાં કર્યું હતું અને એવો નિર્ણય પણ થયો હતો, છતાં પણ જ્યારે આત્માની અનુભૂતિ થાય છે તો પછી એ સમ્યક થઈ જાય છે. આ હું જેવો આત્મા પોતે છે એવા પોતાના આત્માનો અનુભવ થયા પછીથી બીજું બધું જગતમાં પોતાથી જુદું ભિન્ન એને જણાય છે. એટલે એમ છદ્મસ્ત અવસ્થામાં એ વિતરાગ ભેદ ભાવના રૂપ જ્ઞાન વડે આ બધું જે કંઈ થઈ રહ્યું છે એ બધું જ્ઞાન દ્વારા જ થાય છે. આખો પુરુષાર્થ જ્ઞાન દ્વારા જ છે અને પોતે ભગવાન આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ જ છે.
જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, પણ એ પોતે ક્યારેય જ્ઞાન સ્વભાવે પરિણમ્યો નથી. વસ્તુ અંદરમાં એવી જ છે. અંદરમાં અનંત ગુણોનું જેમ ભવન થઈ રહ્યું છે, એવી રીતે જ્ઞાન દર્શન ગુણોનું પણ ભવન થઈ રહ્યું છે. અને એ જ્ઞાન દર્શનનું જે ભવન થઈ રહ્યું છે, એ તો અનંત ગુણના ભવનને એ જ રીતે જાણવા વાળું જ છે. પણ પ્રગટ પર્યાયમાં એ ક્યાં એને જાણે છે? પ્રગટ પર્યાયમાં એ પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવને જાણતો નથી. પ્રગટ પર્યાયમાં પોતે પોતાના અનંત ગુણના ભવનને અનુભવતો નથી. પણ જ્યારે એ સ્વરૂપનું લક્ષ કરે છે, ત્યારે બધાથી જુદો પડી જાય છે, ભિન્ન પડી જાય છે, અને માત્ર પોતાના સ્વભાવ ભાવે પરિણમી અને સ્વરૂપનો અનુભવ કરે છે. એટલે એમ એ વખતે પણ સ્વ અને પરને પ્રકાશે છે. જે સ્વરૂપનો અનુભવ થયો એમ એ સ્વને પ્રકાશવું થયું. અને બીજું બધું જ્ઞેય માત્ર જે છે, એ જ્ઞેય માત્ર એને પોતાથી જુદા જ્ઞેય તરીકે જ જણાય છે. અનંત જ્ઞેયોને એ પ્રત્યક્ષ નથી જાણતો, પરંતુ પરોક્ષપણે જાણે છે. અને વસ્તુનો સ્વભાવ જ એવો છે કે જ્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન નથી થયું, ત્યાં સુધી સીધું પોતાના પ્રદેશોથી એ જ્ઞાન નથી કરતો. તો એ છદ્મસ્ત અવસ્થામાં જ્યારે એ જ્ઞેયને જાણે છે, ત્યારે સામે જ્ઞેયો હોય છે, પણ જ્ઞેયો છે માટે જાણે છે એમ તો નથી. જ્ઞાન સ્વભાવ છે એટલે એ જ્ઞેયોને જાણે છે. જ્ઞાન સ્વભાવનું પરિણમન એ છદ્મસ્ત અવસ્થામાં હોય કે કેવળીની અવસ્થામાં હોય કે નિત્યાત્વની અવસ્થામાં હોય, દરેક વખતે જ્ઞાનનો સ્વભાવ તો એવો જ રહે છે કે એને પર જ્ઞેયોની અપેક્ષા નથી હોતી. પણ એવો જ નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છદ્મસ્ત અવસ્થામાં હોય છે કે જ્યારે એ જાણે છે તો સામે એવા જ્ઞેય પણ છે. એટલે એ પરને પણ એ રીતે પ્રકાશે છે, જાણે છે. પછી જ્યારે અરહંત અવસ્થા થાય છે, ત્યારે કાર્ય સમય સાર રૂપે પરિણમે છે. અને ત્યારે કેવળ જ્ઞાનથી સ્વ અને પરને પ્રકાશે છે. એવો આત્મવસ્તુનો સ્વભાવ છે. એટલે સ્વ પર પ્રકાશક એ જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે. અને એવા સ્વ પર પ્રકાશક સ્વભાવને જ સમજ્યા નથી આપણે. અનાદિથી એ સ્વને પ્રકાશી જ રહ્યો છે. એનું લક્ષ કરી અને આપણે જાણીએ તો ખ્યાલ આવે ને કે સ્વને પ્રકાશી રહ્યો છે. કાંઈ એવું નથી કે સ્વને પ્રકાશવા માટે એને અંદરમાં ધ્યાન કરે તો જ સ્વને પ્રકાશે, એમ નથી. સ્વનું પ્રકાશવું તો હંમેશા થઈ જ રહ્યું છે. તો સતત પ્રક્રિયા ચાલુ જ છે. પણ એને પોતાને ખ્યાલ નથી આવતો કે એનો જ્ઞાન સ્વભાવ એ સ્વને પ્રકાશી જ રહ્યો છે. એમ નથી કે માત્ર પરને જ પ્રકાશે છે. અને એ વાત ગુરુદેવે બહુ સ્પષ્ટ કરી દીધી. કઈ વખતના સ્વાધ્યાયમાં એ વાત બહુ સરસ રીતે ગુરુદેવે સમજાવી. એ દ્રવ્યાર્થિક જ્ઞાનનો વિષય છે ધ્રુવ. એ ધ્રુવમાં અનંત ગુણ જે છે તે અનંત ગુણોનું ભવન છે. તો એમાં જ્ઞાન ગુણનું પણ ભવન થઈ રહ્યું છે, દર્શન ગુણનું પણ ભવન થઈ રહ્યું છે. અને એમ એ જ્ઞાન ત્યાં સર્વ ગુણોના ભવનને જાણે છે. અહીંયા આગળ એ પણ કહે છે કે અહીં કેવળ જ્ઞાન આદિ અનંત ચતુષ્ટયની વ્યક્તિરૂપ એટલે વ્યક્તતા રૂપ જે કાર્ય સમયસાર છે તે જ ઉપાદેય છે, એવો અભિપ્રાય છે. તો આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આપણે લઈએ. ગુજરાતીમાં ગાથા તે પહેલા લઈએ અને પછી પૂજ્ય ગુરુદેવે જે વિસ્તાર કર્યો છે તે લઈએ. ગુજરાતીમાં ગાથા આ પ્રમાણે છે. ગગને રવિવત આત્મા સ્વ પર પ્રકાશે ભાવ યોગીન અહીં કર ભ્રાંતિના એવો વસ્તુ સ્વભાવ. ભ્રાંતિ ન કર, વસ્તુનો એવો સ્વભાવ છે એ યોગી. જેમ ગગનને વિશે રવિ એટલે સૂર્ય પ્રકાશે છે, તેમ આત્મા પણ સ્વ પર પ્રકાશક છે. જેમ આકાશમાં સૂર્યનો પ્રકાશ
પોતાને તથા પર પદાર્થોને પ્રકાશે છે તેમ આત્મા પોતાને તથા અન્ય પદાર્થોને પ્રકાશે છે, જાણે છે. હે યોગી, એમાં ભ્રાંતિ કરીશ નહીં. વસ્તુનો એવો સ્વભાવ છે. અને પછી મેઘપટલની વાત અહીંયા પણ એ રીતે કરી છે. તો આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી આ ગાથા ઉપર જે વિસ્તાર કર્યો છે તે સમજીએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન વર્ડ ટુ વર્ડ ભાગ 3, એના પાના નંબર 242. હવે 101 બારા મળ્યો આ 101 હાલે બપોર 101 સમયસાની 101 ચાલે છે. हाँ आगे इसी अर्थ को दृष्टांत से दृढ़ करते हैं. अपू पयासई अपू परु जेमु अंबरी रविराव जोई थूनु बनती करी एवं वतु साव. 101 गाथा. नीचे अर्थ. जैसे आकाश में सूर्य का प्रकाश अपने को पर को प्रकाशित करता है. अंबरे 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 आकाश. आकाश में सूर्य का प्रकाश अपने को पर को प्रकाश करता है, उसी तरह आत्मा अपने को पर पदार्थ को प्रकाशता है. बस अपना आनंद ज्ञान स्वरूप को जानते हैं. ईश्वर राजाजी पर सबको जानते हैं, प्रकाशते हैं. समझ में आया? हे योगी, इसमें भ्रम मत कर. हे धर्मात्मा, भ्रमणा न कर कि मैं पर को खरीद दो, पर से मेरे में कोई होता है. तेरा स्वभाव का भान होने से पर पदार्थ का प्रकाश सहज हो जाता है. पर का जानना तेरे सहज हो जाता है. जानना हो. ऐसे भ्रम मत कर. एवं वस्तु ऐसा वस्तु का स्वभाव है. क्या किया ये कि भगवान चैतन्य प्रकाश नो नूर पूर उसको जिसने जाना, समझ में आया? उसको सबको पर प्रकाश कर जानते ही है. तो के जाना उसमें पर प्रकाश का ज्ञान भी आ गया. पर को प्रकाश में हो, पर को मारा मानते ऐसे नहीं. भरत चक्रवर्ती समकीती था, 96,000 स्त्री थी. ऋषभदेव भगवान ना पुत्र ऋषभदेव भरत. 96,000 स्त्री, 16,000 देव यानी तैनात्मा. और देव होता ना, देव 2,000 तो यहाँ रहते हैं शरीर की रक्षा में. ये चक्रवर्ती आत्मज्ञानी था तो ये विकल्प से मान पर वस्तु मेरी है नहीं ऐसे मानते थे. सखंड में रहते हुए अखंड रहा है. बहुत झीणी बात है. संकित चीज ऐसी चीज है कि अचारे तो संकित इतने कांई नहीं रहे. देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करो, 9 तत्व की श्रद्धा के संकित अरे धूड़े नहीं अमल ने. समझाने समझ में आया? ऐसा ही वस्तु भाव है. जैसे भावार्थ मेघ रहित आकाश में सूर्य का प्रकाश अपने को और पर को प्रकाशता है. सूर्य उसी प्रकार में सिद्धांत आया. ये तो दृष्टांत हुआ. वितराग निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सा लो ध्यान. भगवान पूर्णानंद स्वरूप उसमें वितराग निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सार मोक्ष का मार्ग. कारण समय सार એટલે મોક્ષ का मार्ग. क्या कि वितराग निर्विकल्प समाधि रूप.
ये व्यवहारात्मक तो ये राग ये भी धर्म नहीं ધૂળી નથી પરંપરા એ તો વ્યવહારના વચન છે રાગ થી કઈ કારણ થતા છે લસણ ખાઈને કસ્તુરીના ડકાર आता है लहसुन खाया तो कसूरी डकार आएगा धूड़े नहीं आएगा राग करते करते आत्मा की दृष्टि सम्यक नहीं होता समझ में आया એવી વાત છે બાપુ આ તો પરમાત્માના ઘરની વાતું છે હા હા વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિ રૂપ કાર્ય સમાધિ એટલે મોક્ષ માર્ગ क्या मोक्ष मार्ग वीतराग राग रहित पुनः विकल्पन नहीं निर्विकल्प अभेद समाधि नाम शांति ये शुद्ध पर्याय मोक्ष मार्ग की ये कारण समय साथ जाते हैं कारण समय सारना दो प्रकार एक त्रिकाली आनंद कर्ण प्रभु विनायक भाव कारण परमात्मा को कारण समय सार कहते हैं वस्तु जी त्रिकाली आनंद नो नाथ अनंत शक्ति नो सागर ध्रुव उसको कारण समय सार अथवा कारण परमात्मा कहते हैं ये कारण परमात्मा के आश्रय से निर्विकल्प राग रहित वितरागी शांति वितरागी शांति द्वारा जेने मोक्ष मार्ग नया प्रकट किया कारण समय सारी पर्याय का कारण समय सार है हाँ 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 राग फाग नहीं आई तो बात है विकल्प ये उठते ये तो कोई धर्म ही नहीं धर्म ना कारण ही नहीं मोक्ष मार्ग ही नहीं हाँ हाँ दशरथ जी भगवान मार्ग तो बहुत जुदी जात प्रभु लोगों ने पीरसाणो છે અજૈન પણ પીરસાણું ને જૈન ને નામે હા 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 जैन मार्ग नहीं रीत तो वितराग भाव नहीं है समझ में आया एक शब्द में मुक्या क्या जैन आकाश में सूर्य अपने को प्रकाशते हैं पर को प्रकाशते हैं ऐसा भगवान आत्मा अपना कारण समय सार जी प्रभु टिकाव उसमें विकल्प रहित निर्विकल्प नाम वितरागी पर्याय से निर्विकल्प अभेद અને સમાધિ સમાધિ એટલે બાવા સમાધિ ચડવી નહીં આ वितराग्नि भाव रूपी समाधि अंदर प्रकट करी इसका नाम मोक्ष का मार्ग कहने में आता है उसका नाम कारण समयसार पर्याय का कारण समयसार है अरे यार सारी बातों बड़ी है है दृष्टांत पहले दिया ना सुन समझे जैसे मेघ रहित वादड़ा ने वर्षा रहित आकाश में सूर्य का प्रकाश अपने को सूर्य पुताने प्रकाश है पर को प्रकाश है उसी प्रकार वितराग निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सार में लीन होकर भाषा ही कठिन पड़े मानव है जिसने सम्यक दर्शन प्रकट किया ये सम्यक दर्शन वितरागी पर्याय है त्रिकाली भगवान पूर्णानंद का प्रतीत के अनुभव में स्वभाव जो त्रिकाली कारण परमात्मा ध्रुव है उसकी प्रतीति उसके आश्रय से किया ये निर्विकल्प सम्यक दर्शन वितरागी पर्याय है और त्रिकाली ज्ञान का ज्ञान किया ये ज्ञान है
ये सम्यक ज्ञान है। और त्रिकाली ज्ञान स्वरूप में लीनता हुई, ये चारित्र है। समझ में आया भैया? पर्यूषण का दिन है, भगवान की वाणी आ है, इन्हें सुनने में मिले नहीं प्रभु ही सुन कशिया आंख मीठी क्या कागड़े कूतरे तरसनी स्थिति पूरी थी से। तरसनी स्थिति पूरी होगी तो चले जाएगा निगोद में। मान निकल कर मनुष्य हुआ है। ऐसा वितराग का मार्ग जो ख्याल में न आया, सूत्र की दूरी बिना, सूत्र का धागा बिना की सोई खो जाती है, हाथ नहीं आवे। पर जो सोई में तो सूत्र का धागा, वो तो समझते हैं कि धागा तो एक लिस्ट हो तो, पर धागा जो दिया है साथ चकली मारे में ले जाए तो क्या अपना धागा है, सोचा है। ऐसे आत्मा सम्यक ज्ञान रूपी धागा जो के पर होगा, जन्म मरण से रहित हो जाएगा। ये खोए से नहीं, चार गति में गुप्त नहीं हो जाता है। समझ में आया? आ सम्यक सत्य ज्ञान जिसने किया नहीं, ये गमे तेटला महाव्रत आदि पड़े पण चार गति में रखने वाला है। ये दाखवाय तो है कुन आचार्य जहा सोई सुसुताप पर्यावी न विण सही, सोई सूत्र धागा से तो हो तो ख्वाशी नहीं। ख्वाशी क्या कहते हैं? गुमने हो गए ना, खोई कहते हैं। ठीक, हमारी हिंदी कहीं पूरी नहीं आती, तो सब थोड़ी थोड़ी आती है। ससूत्र सत सोई नहीं गुम हो जाएगा। जिसका ज्ञान लक्षण स्वभाव प्रकट लिया, मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ये पुण्य पाप का भावी नहीं न, उसके मेरे लाभ नहीं नुकसान है। ऐसा निर्विकल्प सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से कारण समीसार में लीन हुआ। प्रभु अंदर में ज्ञान में आनंद में, अतीन्द्रिय आनंद में दृष्टि ज्ञान ने लीनता लीन हुई। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तत्वा सूत्र 10 लक्ष्य में बोले બધા ઘડી આંકે જાય, તમને ખબર નહીં શું છે। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तत्वा सूत्र। ये भगवान पूर्णानंद प्रभु वितराग स्वरूपे प्रभु आत्मा है। आत्मा वितराग की मूर्ति है। आत्मा अभी हो। ये निर्विकल्प वितराग समाधि स्वरूप ही है आत्मा। लोगों ने क्या किया? भगवान आत्मा निर्विकल्प वितराग शांत समाधि स्वरूप ही है। उसके आश्रय से पर्याय में जो प्रकट हुआ, ये भी निर्विकल्प समाधि वितराग पर्याय, उसका नाम मोक्ष का मार्ग। क्या किया ये कि निर्विकल्प वितराग निर्विकल्प समाधि ये उत्पन्न किया मोक्ष मार्ग। पर ये निर्विकल्प पर्याय उत्पन्न हुई किससे? ये वस्तु निर्विकल्प वितराग समाधि शांत मूर्ति प्रभु आत्मा है, उसमें से निर्विकल्प पर्याय प्रकट होती है। राग करो करते करते होता है नहीं, हम ना पाड़ते हैं। जानवी जी आओ मार गए। अरे એને 1 સેકન્ડ भी कभी जानो नहीं, रुचू नहीं। एमने जिंदगी मजूरी नहीं पैसे निकाल लिया।
એ વ્રત अपना 28 મૂળ ગુણ સાધુના હે ને એવી રાગ એ મજૂરી है आत्मधर्म नहीं ऐसे પણ પોતાને કઈ ત્યાગ ના આવડે ને એટલો થોડોક બારથી ત્યાગ કર્યો જય મહારાજ જય નારાયણ અરે ભગવાન સાંભળતો ખરો પ્રભુ તો નહીં અહીંયા एक शब्द में कितना भर दिया है कि मेघ राधा देखिए आकाश में सूर्य का प्रकाश अपने पर को प्रकाश है उसी प्रकार ये तो सिद्ध दृष्टांत हुआ वितराग निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सा भगवान की पर्याय आत्मा की हा भगवान स्वरूपी प्रभु आत्मा उसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निर्विकल्प वितरागी शांति प्रकट हुई ये मोक्ष मार्ग समझ में आया भैया पर्यूषण ने दिन से ये सच बात है तो आज तो सच धर्म है तो सच धर्म है ऐनी श्रद्धा में तो पक्ष करे कि निर्विकल्प वितराग्नि प्रणति उत्पन्न हो ये मोक्ष मार्ग है ऐसी श्रद्धा में पहले पक्ष करना चाहिए पक्ष करे तो लक्ष्य होगा तो दक्ष होगा तो क्यों नहीं होगा पक्ष करे तो लक्ष्य होगा न तो दक्ष होगा अरे पक्ष करे तो लक्ष्य होगा पक्ष करते करते लक्ष्य होगा न लक्ष्य होता है दक्ष होगा सत्संग ज्ञान दर्शन होते पर हजी पक्ष नहीं ठेकारा नहीं आई तो परमात्मा योगेंद्र देव संत दिगंबर जंगलवासी मुनियों तो जंगल में रहते थे श्वेतांबर आदि वस्त्र सहित तो पछी निकला भगवान पसे 600 वर्षे ये कई मुनि मार्ग नहीं ये जैन मार्ग नहीं जैन तो आत्मा ना आनंद में मस्त अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव में मस्त जिसको वस्त्र पात्र छूट जाता है और अंतर में तृण कषाय का अभाव हो जाता है ऐसी निर्विकल्प वितरागी समाधि उसका नाम मोक्ष का मार्ग है हाँ समझ में आया वितराग निर्विकल्प आगण में वितराग नीचे क्या था वितराग तो केवल में होता है अरे सुन तो सही आत्मा त्रिकाल वितराग निर्विकल्प शांत स्वरूप ही है खबर क्या है चीज क्या है अंदर में उसके आश्रय से दृष्टि जो प्रकट है ये निर्विकल्प वितराग प्रणति प्रकट होती है समझ में आया ये कारण समयसार मोक्ष जो केवल ज्ञान है कार्य समयसार केवल ज्ञान मुक्त कार्य समयसार उसका कारण समयसार उसका कारण उसका कारण व्यवहार दया निवृत्ति कारण पालन नहीं तो विघन है बंद का कारण है समझ में आया है सूर्य नहीं बैठे सूर्य अपने को प्रकाश है पर को प्रकाश है ऐसे वितराग निर्विकल्प समाधि समाधि की शांति समाधि એટલે बाबा कहते हैं समाधि ये नहीं ये तो हठ योगी मुंड है तो आत्मा ना आनंद में जागृत होकर शांति 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 शांत रसना झरना झरे राग ये कषाय भाव अशांत भाव छठा में आया नहीं राग आग दाद है सदा ताते समामृत शेय छठा में आता है राग आग दाद है सदा ये शुभ राग भी आग है दाह है छठा में नहीं
गागर में सागर भर दिया है, एना अर्थ नहीं खबर न મળે। ये आई कहते हैं राग रहित वितरागी निर्विक्रम अभेद समाधि शांति, ऐसा कारण समय सार में लीन होकर मोर वीर समूह का नाश करके लो सूर्य वादलों नो नाश किया, मोर उससे नाश होता है। हाँ 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 हाँ, पूर्ण वितराग स्वरूप भगवान आत्मा है ये, उसके आश्रय से उसका ध्यान करने से जो निर्विकल्प शांति वितरागी पर्याय प्रकट होती है, उसका यहाँ कारण समय उसको कहते हैं। उसमें लीन होकर मोर मोह मृत्सम का नाश करके वो आत्मा छद्मस अवस्था में, संस्कृत में छद्मस अवस्था भाई संस्कृत में ये नहीं है, नहीं संस्कृत है गोलिको शासन छद्मावस्थायाम विनष्टि सती परमात्मा छद्मावस्थायाम वितराग भेद भावना ज्ञानेनम छद्मस्वस्था, अपना आनंद स्वरूप में लीन होकर छद्मस्थ अवस्था में वितराग स्व समय ज्ञान का अपने को और पर को कुछ प्रकाशित करता है। क्या कहते हैं क्यों वादल कहते हैं ना, मेघ वादल बिना का सूर्य अपने को प्रकाश से पर को प्रकाश, ऐसे भगवान आत्मा अपना चैतन्य प्रकाश का नूर पूर्व में एकाग्र होकर निर्विकल्प शांति न वितरागी पर्याय से लीन होकर छद्मस्थ अवस्था में क्या होता है उससे है स्वस्थ वितराग संज्ञान अपने को अपना वितरागी पर्याय में स्व नाम प्रत्यक्ष संवेदन ज्ञान अपने को जानते हैं और पर को कुछ प्रकाशित करते हैं, कुछ पूर्ण नहीं है। समझ में आया? अरे भारी गाथा भाई अभी अलौकिक है बापू। हाँ हाँ, ये वितराग मार्ग अलौकिक है, ये सिवाय क्या है? वितराग दिगंबर मार्ग वितराग है, ये ऐसी बात कोई मत में कहीं है नहीं। दूसरा सा समन्वय करे सब झूठ है। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, वितराग सोच संवेदन कर मोह आदि को नाश करके अपने को पर को कुछ प्रकाशित करता है। छद्मस है पूर्ण प्रकाशित न हो, प्रत्यक्ष पीछे अनंत अवस्था होकर कार्य समय सार उपमन करके देखो कार्य है आत्मा का। ढूंढना कार्य नहीं, रागना कार्य आत्मा का नहीं। अपना निर्विकल्प वितरागी पर्याय द्वारा जिसने कार्य समय सार उपमन करके कार्य समय सारों कहा, यहाँ मुख्य मार्ग है कारण समय सार कहा। ये कारण है और केवल ज्ञान ये कार्य है। समझ में आया? व्यवहार रत्नत्र ये कारण नहीं है कहते हैं। तो बंधना कारण है। देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प, पंच महावृत का विकल्प, शास्त्र का पढ़ना का विकल्प, सब बंद का कारण है। दस लक्ष्मी पर्व में हिंदी पहला वाला चलते हो, कभी गुजराती चलाया है अभी तक। એમાં અમારે થોડી ચલા ચંદી બરાબર આ ગયા, અમારા બેન આગળ ક્યાં છે બેન બા અને હિન્દી નથી ચલતા।
10 मिनट पढ़ने पर 20 दिन चलते हैं ना, कल हिंदी चलाते हैं, हिंदी बहुत आते हैं ना, पर हाँ तो पहले महीने चलते हैं हिंदी। यहाँ तो कहते हैं कि जिसने अपना स्वसंवेदन वितराग पर्याय द्वारा लोकालोक जेने प्रकाश ऐसा कार्य समय साथ प्रकट किया, उसका नाम परमात्मा ने हरियंत कहने में आता विशेष कही। 10 लक्षणी पर्व में से 5वां दिन है शौच। शौच शौच का अर्थ है पवित्रता, उसका अर्थ है 94 का था ना, जो किसी भी जीव के मारने की भावना नहीं और अत्यंत दुर्भेद लोभ क्रोधादि मल का हरण करने वाला है, ऐसा चित शौच धर्म है। क्या कहते हैं, सूक्ष्म बात है थोड़ी। परिस्त्री એટલે ખરેખર તો રાગની પરિણતિ એ પરિસ્ત્રી है। शुभ राग हो और शुभ राग तो एक राग, शुभ राग दया दान व्रत भक्ति का परिणाम। ये राग ये अशुद्ध परिणति है, उसका संग करना ये परिस्त्री का सेवन है। समझ में आया? अब परिस्त्री का हम त्याग तो अनंत बेर किया है बाहर का, तो समझ में आया? ये 7 व्यसन है ना उसमें है भाई, 7 व्यसन है ना, समय सा नाटक ये लिया ना कहीं, શું કહેવાય व्यसन व्यसन। अशुभ में हारी शुभ जीती है दुष्ट कर्म। ये जुगाड़ किसको जुगाड़ कहते हैं, किसको जुगाड़ कहते हैं? यहाँ भगवान के अशुभ कर्म में हार मानना और शुभ में जीत मानना, ये जुगटा है। सुन रहे क्या गया था क्या? ठीक क्या बोलो से तुम्हारे समझाई से खाए। बनारसी दास ने खुलासा किया है कि अशुभ कर्म उदय में हार मानना और शुभ कर्म उदय में विजय मानना, ये भाव जुगटा है, भाव सट्टा है। बारना सट्टा नित्या चीज साधारण है। समझ आया? और देखो, शरीर में लीन होना ये भाव मांस भक्षण है। भगवान आनंद स्वरूप में लीन छोड़कर, भगवान अतीन्द्रिय आनंदमय प्रभु उसमें लीनता छोड़कर शरीर में लीनता करना, ये भाव मांस है, मांस खाने का भाव है। वो क्या कहते हैं? क्या हमारा नहीं है, हमेशा नाटक का है। बनारसी दास 347 पत्र है, वो तो घर में बातों में तो ये 78 साल से आचा है, 78। हाँ, समय सा नाटक 22 बद्री 54 वर्ष हुआ। क्या से तुम तो आप संप्रदाय में आवाज थे हम तो उसमें थे ना। यहाँ कहते हैं कि शरीर में लीन हो जाए भाव मांस भक्षण है। मिथ्यात्व में मूर्छित होकर स्वरूप को भूलना ही दारू पीना है। ये आया देखो, शुभ में हारी शुभ जीती यह दुष्ट कर्म, देह की मगनता यह मांस बखवो, मोह की गहल सो अजान या सुगर स्वरापान। दारू पिया जिसने अपना भगवान आनंद स्वरूप की दृष्टि छोड़कर शुभ भाव में प्रेम में गान गहला हो गया, गहला। ये सुरापान दारू पिया उसने।
समझ में आया? उसको सोच धर्म होता नहीं। हाँ, बात ऐसी भैया तो है। और कुमति की रीति गैया को रस चखो, कुबुद्धि के मार्ग पर चलना ये वेश्या का सेवन है। विपरीत मति राग से धर्म है, पुण्य से धर्म है। समझ में आया? ऐसी कुबुद्धि पर चलना ये वेश्या का संग है। क्या कहते हैं? होता है, इसी तो बात चलती है। ये तो बात ऐसे है। हाँ, तो समय सा नाटक भाई बनाया है, बना चला। कुबुद्धि के मार्ग पर चलना ये भाव वेशा से होना है। और कठोर परिणाम रखते प्राणों का घात करना एक शिकार है। द्वेष अंदर करके पर का घात करना द्वेष ही शिकार है। अपना शिकार अपनी शांति का शिकार होता है उसमें। राग ने द्वेष का परिणाम में रुचि ने प्रेम अपनी शांति का शिकार होता है। आई बात है भाई, समझ में आया? और देहादि पर वस्तु में आत्मबुद्धि रखना ही भाव परिश्री है। या कहा अभी देह राग पुण्य भाव उसमें आत्मबुद्धि रखना। ये शुभ भाव न देह न स्त्री आदि पर सब में आत्मबुद्धि रखना वो भाव स्त्री संग है। बाहर की स्त्री संग तो अनंत वेर छोड़ा, उसमें क्या आया? समझ में आया? आप परिश्री जो आत्मा का विकार परिणति, उसमें आत्मबुद्धि रखना। भगवान तो निर्मलानंद प्रभु है, उसकी बुद्धि छोड़कर शुभाशुभ परिणाम मलिन जो है उसमें आत्मबुद्धि करना वही परिश्री का सेवन है। विचारणी बुद्धि लोगों ने बाहर नहीं पड़ी, पर अंतर क्या चीज है इसकी खबर नहीं। समझ में आया? ये आई कहते हैं, देखो अनुराग पूर्वक पर पदार्थ में प्रग्रहण करने की अभिलाषा भाव चोरी है। प्रेम से शुभ भाव ने ग्रहण करना ये भाव चोरी है। भगवान आनंद का नाथ प्रभु शुद्ध चैतन्य घन को छोड़कर ऐसे राग का शुभ भाव में भी अपनी बुद्धि रखना अथवा प्रेम करना ये भाव चोरी है। ये सातों भाव वचन आत्मज्ञान को विधान करते हैं। सातों भाव व्यसन भगवान आत्मज्ञान सम्यक दर्शन उसको विधान करते हैं, छेदते हैं। समझ में आया? क्यों नहीं? आया साधारण परिस्थिति लिखी जा नहीं, साधारण बात है। अपने में राग का भाव हो शुभ, समझ में आया? ये भी हिंसा है। उसमें से छूटकर वितरागी पर्याय आत्मा के आश्रय प्रकट करना ये अहिंसा धर्म है। ये शौच है, ये पवित्रता है। समझ में आया? एक बोलूंगा, एक गाथा नहीं, दूसरी गाथा। आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार घृणित मध्य में भरा हुआ दारू से भरा हुआ घड़ा यदि बहुत बार शुद्ध जल से धोया भी जाए तो शुद्ध नहीं हो सकता। उसी प्रकार मनुष्य भाई में गंगा पुष्कर आदि ये तो अनुमति का नाम लिया, पर आपने शत्रुंजी आदि जाए न, शत्रुंजी नदी में नहाए उससे कोई पवित्र नहीं होता। किंतु उसका अंतकरण अनेक प्रकार के मिथ्याद आदि कसाय से मलिमस है। एम शब्द છે એમાં છે ને મિથ્યાદ, या આમાં ક્રોધાદિ કસાય લખ્યું છે।
પાઠમાં મિથ્યાત છે, એ અર્થમાં ફેર છે થોડો. मिथ्यात आदि मरिमसम एवं पाठ है. जिसकी बुद्धि भी मेरा है, पुण्य परिणाम होता है मेरा है और उससे मेरे लाभ होगा, ऐसा मिथ्यात से जन ये मलिन बुद्धि है. हा समझ में आया? ये असोच है. पर की अपनी बुद्धि छोड़कर अपना स्वभाव में बुद्धि करना सम्यक दर्शन और शौच है. बाकी बड़ा शौच अशौच है. समझ में आया? मिथ्यातादि मुख्य वस्तु जिनसे आपने परमात्मा प्रकाश 101 है ना, 101 गाथा है. हाँ. यह आत्मवस्तु का स्वभाव क्या लेना. 101 गाथा नीचे से तीसरी पंक्ति. यह आत्मवस्तु का स्वभाव क्या कि अपने आत्मा का शुद्ध चैतन्य भगवान पूर्ण आनंद प्रभु उसकी दृष्टि करके उसमें लीन होना. एक कारण समय सार में लीन हुआ, उससे कार्य समय सार केवल ज्ञान आदि प्रकट होगा ही. कार्य समय सार है. समझ में आया भाई? जैन दर्शन सूक्ष्म में लोगों ने तो जैन दर्शन मिला नहीं, अजैन नाम में जैन डरा दिया है. राग में पर में से लाभ है, ये अजैनपना है. शुभ राग से दया दान व्रत भक्ति से धर्म होता है, ऐसी मान्यता वाला जैन नहीं अजैन है. समझ में आया? वो यहाँ कहते हैं भगवान आत्मा शुद्ध आनंद घन प्रभु उसका अनुभव करना. ये चैतन्य पवित्र के अनुसरी ने अनुभव करना. अनुभव रत्न चिंतामणि, अनुभव है रसकूट, अनुभव मार्ग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष स्वरूप. समझ में आया? ये मूળ વાતની વિના થોતા હાલે બધા અને બધા જિંદગી ગુમાવે, ચાર ગતિ રખડે છે. यहाँ तो कहते हैं अपना जो कारण परमात्मा ध्रुव नित्यानंद प्रभु उसका अनुभव करके दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करते हैं. सम्यक दर्शन निर्विक दशा, उसको यहाँ कारण समय सार कहते हैं. અને वो कारण समय सार से कार्य समय सार केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट होता है, उसको कार्य समय सार कहते हैं. बातें फिर कहते हैं ना आनंद कहे परमानंदा मानसे फिर 1 लाखे तो न મળે ને 1 ત્રાંબિયા ના. એમ भगवान के तारे ने मारे बातें फिर. समझ में आया? परमात्मा प्रकाश है. देखा नहीं कभी कलाचंद जी? फिर एक नहीं हमारी बहन पे यही होगा, यही तो एनी पे कमाई में हूँ. अच्छा बहन पे है ना परमात्मा प्रकाश दिया क्या? ठीक है. हाँ चीज तो क्या है. जैन दर्शन का प्राण भगवान परमात्मा स्वरूप ही हम परमात्मा प्रकाश कहते हैं. तेरी चीज ही परमात्मा स्वरूप है. विकल्प राग मन ने संबंध विना कर्म विना की चीज तेरा परमात्मा स्वरूप अनंत आनंद ने ज्ञान स्वरूप प्रभु है. उसके अंतर में एक परमात्मा स्वरूप जो असली ध्रुव कार कायम एने यहाँ कारण परमात्मा कहते हैं. समझ में आया? बातें फिर बहुत ये कारण परमात्मा की सन्मुख थईने सन्मुख होकर सम्यक दर्शन अंतर में ज्ञान का अनुभव करके
ज्ञान की प्रतीति, पूर्ण ज्ञान स्वरूप ऐसी अंतर में निर्विकल्प राग बिना की प्रतीति करना, उसका नाम तो प्रथम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? और इस सम्यक ज्ञान पीछे उस स्वरूप से पूर्णानंद प्रभु, उसको सोना अपने से प्रत्यक्ष ज्ञान का संवेदन करना, राग का नहीं, ज्ञान आनंद का संवेदन करना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और इस स्वरूप भगवान परमात्मा में अंतर्लीन होना, अतीन्द्रिय आनंद का भोजन करना। भोजन करते ना हमारे यहाँ, हाथा न पतन, हाथा क्या कहते थे, खाजा है, खाजा कहते हैं ना, हाथा नहीं गया, हाथा ने हमारा खाजा आया था छोकरा में क्या कोक लायो तू, खाजा कहते तुम्हारे, हाथा कहते बोला, शक्कर में मिठाई। खाजा तो भगवान आनंद का नाथ, उसका खाजा अनुभव एक खाजा है। समझ में आया? अरे क्या थी लावे भाई, हजी बात तो सांभळवामां मळे नहीं, बेचारा क्या जाए। अरे प्रभु तो एम कहते हैं कि कारण परमात्मा सच्चिदानंद प्रभु ध्रुव, ये कारण जीव कहो, कारण परमात्मा कहो, कारण त्रिकाली, कारण समयसार कहो, उसकी सन्मुख का अनुभव, निर्विकल्प राग बिना की श्रद्धा ज्ञान शांति, ये प्रगट पर्याय को कारण समयसार कहते हैं। त्रिकाल को कारण समयसार, प्रगट पर्याय जो हुई वितरागी, सम्यक वितरागी ज्ञान, वितरागी चारित्र तीर्था, उसको कारण समयसार कहते हैं। और वो कारण समयसार का फल आनंद ज्ञान दर्शन आनंद जी कार्य समयसार भगवान होता है, ये कार्य समयसार है। ये कारण समयसार का ये कार्य समयसार फल है। कोई दया दान व्रत में उससे कार्य आता है, ऐसा है नहीं। हाँ, लोगों ने एकांत लगते पर वस्तु सम्यक एकांत ऐसी है। समझ में आया? हाँ। महाप्रभु चैतन्य रतन जेम निर्मलता रे स्फटिक तणी, जेम जीव स्वभाव रे, जेम निर्मलता कहते ना, ये वस्तु नो स्वभाव जो, यह आत्म वस्तु का स्वभाव क्या कि जेम निर्मलता रे स्फटिक तणी, स्फटिक रतन होता है ना, हम तो देखा है स्फटिक रतन इतना जामनगर में 90 साल भाई આપણે સોગાથા ચાલતી હતી તો એ ડાક્ટર આવ્યા હતા, પ્રાણીજમ डॉक्टर है, मासिक 28,000 पगार ते वक्त હતો 90 के साल की बात, तो उसमें थे हम संप्रदाय, पर समीक्षार वास्ते थे ना हम तो तो उसने कहा है स्फटिक कितना बताया, यहाँ बड़ा 6 लाख रुपया नो एक सोलेरियम है, सोलेरियम समझे, संचा है 6 लाख रुपया का, ये वक्त ना 6 लाख हो, अचानक बदी गया है तो 6 लाख का ही ऐसा है, सूर्य का तड़का होता है सूर्य का, तो उसमें तांबा का ओला हो, तो उसमें लगे तो जो गुमड़ा होता है ना, बहुत गुमड़ी नहीं ऐसा, तो लगावे तो मिट मटी जाते हैं, ये 6 लाख का सोनेरी में। तो ये डॉक्टर एक हमारा सोना सौंदा था, बहुत सूक्ष्म सौंदा था समय साथ, तो ओके महाराज हमारा देखने का, वो तुम्हारे काम आपसे दृष्टांत में डॉक्टर हम गए थे जो देखने, समझ में आया? अब सौगा थमाया नहीं, समय सार नहीं चाली थी, हाँ तो जामनगर में चाली थी, इसकी बात है, राजकोट में तो चाली थी 100 थी, ये 90 की साल यहाँ तो पीछे आए, यहाँ चाली थी, क्या से गई ना यहाँ जामनगर न्याय चाली थी, उसमें तो बहुत अधिक आ गया है इसमें। क्या है कि आत्मा में जो कंपन होता है प्रदेश का, और जो राग की इच्छा वृत्ति उठती है, ये राग ने कंपन का जो कर्ता ज्ञानी होता है,
तो पर का कार्य के काल में ये कंपन ने राग को निमित्त करता कहने में आता है। अरे अरे वाते फिर बड़ी ऊंधी बातों जिसका घड़ा सुनते घड़ा माटी का ऊंधा हो तो ऊपर से ऊंधा रहे, उसका सीधा रहे नहीं। घड़ा समझते नहीं क्या लगेंगे अब माटी का नीचे मुंह करके न पीछे ऊपर ऐसा नहीं रह सके, ऊंधे पर ऊंधे रहे। एम जिसकी दृष्टि ऊंधी उल्टी है उसका तर्क आदि शास्त्र ज्ञान बड़ा ऊंधा है। समझ में आया? તો આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. ગાથા 101 હજી થોડો વધુ વિસ્તાર આવતી વખતે આપણે લઈશું.